السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف یا ملتضی امداد کن۔ نیر نور الہدا بدر یا شمس الضحیٰ، اے رب کے آئینہ ذات خدا امداد کن۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں، مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ساری تفصیل بتاؤں، لیکن جو میرا عنوان ہے مذہب اسلام اور باطل مذاہب کا ٹکراؤ کیوں، میں اسی پر روشنی ڈالنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث جو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو۔ لیکن آج ہر گروپ، ہر دھرم میں سب سے جو بڑی بات پائی جاتی ہے، میں وہ بات سب سے پہلے آپ کے ذہن سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، آج کے تقریباً 2 سال پہلے جب اسی مدرسے کے اندر میں ایک کتاب کا نام جس کا تقویۃ الایمان، اس کتاب کو لایا تھا، اس وقت میرے بھائیوں نے کہا تھا یہ بندہ گمراہ ہو چکا، اس لیے تقویۃ الایمان کو لایا ہے۔ پھر میں نے ایک دوسرے دھرم کی کتاب لایا، کچھ ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ان دھرم والوں سے پیار کر رہا ہے، لیکن میں کتاب خریدنے سے پہلے جس کے ہاتھ سے خریدتا ہوں وہیں پر ایک لفظ کہتا ہوں، اور وہ لفظ یہ ہے، میں جس سے تلوار لیتا ہوں اسی پر وار کرتا ہوں۔ جن میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تقویۃ الایمان کو لا کر تم گمراہ ہو چکے ہو، ایسے ہی ایک بس منایا گیا تھا، اس کے اندر ثابت کر دیا تھا کون وفادار مصطفیٰ ہے، کون غدار مصطفیٰ ہے۔ بس اسی طرح آج جو ہندوستان کے اندر تمام مسلمانوں کو ایک اعلان کیا جاتا ہے ہائی کورٹ کے ذریعے سے کہ تمام مسلمانوں کو اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہیے، اس لیے تم سب کے سب ہندو ہو، تم سب تمہارے پرکھے سب کے سب ہندو ہیں، تم مسلمان بعد میں ہوئے ہو، جب تمہارے غریب نواز آئے ہیں سنجر سے تب تم جا کر مسلمان ہوئے ہو۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کی سیرت بعد میں بتاؤں گا، پہلے آؤ ہم جس دھرم کے ماننے والے اس دھرم کی حقیقت بتاتے ہیں اور اس دھرم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم ایسے دھرم کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ سے سچائی کی بیج بویا ہو، جو ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلایا ہو، جو ہمیشہ سے ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے بلایا ہو۔ آج میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ RSS کے لوگ ہوں، چاہے اور سنگٹن کے لوگ ہوں، میں تبت سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک سارے ہندوستان کے مہاراجوں کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنی کسی بھی کتاب کے اندر آج جو ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہو نا اپنا دھرم پریورتن کر لو، تم سب کے سب پہلے مسلمان، تم سب کے سب پہلے ہندو تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہو۔ آؤ میں سارے ہندو بھائیوں کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور جو سنگٹن بنا کے آج ہم مسلمانوں پر وار کیا جاتا ہے اور ایک ہی اعلان، ایک ہی زبان پہ ایک ہی نام ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اپنا دھرم پریورتن کر کے فوراً ہندو بن جائے، میں سارے مہاراجوں سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کسی بھی کتاب کے اندر یہ ثابت کر دیں کہ دنیا میں کوئی ہندو دھرم بھی ہے، میں اس دھرم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سارے جو شمشان گھاٹ میں مر چکے ہیں، آپ ان پنڈتوں کو بھی بلا لیں، اور جو ہندوستان یا بیرون ملک میں زندہ پنڈت ہیں آپ ان کو بلا کر یہ ہمیں ثابت کر کے بتائیں کہ کہیں پر ہی کسی بھی کتاب میں ہندو دھرم لکھا ہوا ہے۔ ہندو دھرم کسی بھی کتاب کے اندر لکھا ہی نہیں ہے، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں اپنا دھرم
परिवर्तन कर लें, आपको अपना धर्म बदलना है। दीन इस्लाम बहुत पहले का दीन है, दीन इस्लाम पर ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहे हैं, दीन इस्लाम पर हजरत ईसा रहे हैं, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम और उनका भी धर्म इस्लाम ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इसी इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे बात की जाती है जो लोगों के सामने तो मुसलमान के रूप में बनकर आए थे, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं होते हैं। जो लोगों के सामने सबसे बड़े लीडर बनकर आ जाते हैं, मुसलमान इस्लाम के लेबल लगाकर इस्लाम के नाम पर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्हीं में से एक शख्स, एक कुत्ते का नाम जिसको वसीम रिजवी बताया जाता है, ना मैं इसको कल मुसलमान मानता था और ना आज मुसलमान मानता हूँ। पहले ये मानता था छोटा काफिर, आज बड़ा काफिर मान रहा हूँ। ये इससे पहले जब अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उससे पहले ये अहले तशय्युं का धर्म इस्तेमाल करता था, अहले तशय्युं के धर्म पर चलता था, ये खुला काफिर था, इसलिए शिया था। और उससे पहले भी हम इसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते थे, और उसके बाद एकदम ये खुला काफिर हुआ है, हम इसको मुसलमान कभी तस्लीम किए ही नहीं थे। और अब इसी के जो नाम निहाद मुसलमान बन के अपने आप को नबी का दीवाना कहने वाला, और जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब इसने सीरत को लिखी है तो आप बताता हूँ उसने लिखा क्या है। वो अपने कलम से और अपनी किताब के अंदर लिखता है, दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई शातिर इंसान था ही नहीं, दुनिया में कोई मोहम्मद से ज्यादा ज़िना करने वाला इंसान था ही नहीं। अपने आप को मुसलमान कह रहा था, लेकिन हकीकत में वो काफिर था, याद रखना। और मैं ऐसे लोगों की बात बताना चाहता हूँ, आज जो इस्लाम पर सबसे ज्यादा आवाजें उठा रहे हैं, और हमारे वो भाई जो ये कहकर चुप जाया करते थे कि देखो वसीम रिजवी मुसलमान है, तुम्हारे नबी की तरफ, तुम्हारे नबी के खिलाफ कह रहा है, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, उसने पीएचडी करके फिर तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आओ जरा कुरान को हम पढ़कर देखते हैं, कुरान हमें क्या पैगाम देता है। और मैं उन लोगों को भी साबित करना चाहता हूँ जो एक खुदा को छोड़कर तकरीबन 33 करोड़ या 35 करोड़ खुदाओं के मानने वाले हैं। इस्लाम पर आवाज बाद में उठाना, आओ पहले इस्लाम की तारीख को देखो। आप में जो मैंने एक बात कही है, अब पूरी दुनिया में कयामत तो बर्पा हो सकती है, लेकिन आप किसी भी अपने किताब में हिंदू धर्म दिखाई नहीं सकते हो। इसका मतलब जब आप हिंदू धर्म दिखा नहीं सकते हो, हम मुसलमानों को मत बुलाओ अपने धर्म की तरफ। हिंदू धर्म किसी धर्म का नाम ही नहीं है, फिर इसका नाम क्या है? आओ मैं आपको आप ही की किताब से हवाला देकर आपको समझाता हूँ। जाकर शामुएत के अंदर सुलूक नंबर 177 पे देख लेना, उसके अंदर लिखा गया है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब समझते हो क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब ये होता है वो धर्म जो हमेशा से सच्चाई की तरफ बुलाया हो, और ऐसे धर्म का उर्दू माना होता है इस्लाम, और या तो फिर इस धर्म का ये माना बताया गया है शाश्वत धर्म, और शाश्वत धर्म का माना होता है वो कुरान, वो पुस्तक जो हमें, जो आकाश से ऐसे धरती पर आई हो जिसके अंदर कोई घोटाला न किया गया हो। आप अपने पंडितों को बुलाओ और सामने बिठाओ, मनुस्मृति को उठाओ, कुरान को उठाओ, गीता को उठाओ, सारी किताबों को उठा के चेक करने लगो। और अगर वो बड़ी किताबों को नहीं छान सकते हो, छोटी किताबों में आ जाओ। तुलसीदास की मनुस्मृति को उठाओ, जो उन्होंने यवत में बैठकर लिखी थी ना, आज वो मनुस्मृति बदल जा चुकी है, आज उसमें घोटाला कर दिया जा चुका है, शामोद में घोटाला हुआ है, और आप ही की किताब बता रही है शाश्वत धर्म का माना ये होता है वो किताब जो आकाश से ऐसे धरती पर आई हो जिसमें कोई घोटाला न किया गया हो। आप पूरी दुनिया के मज़ाहिब को मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी किताबों को उठाकर चेक करो, चाहे वो इंजील शरीफ को उठाओ, चाहे तौरात शरीफ को उठाओ, सब में घोटाला हो चुका है। लेकिन आपको वाहिद किताब कुरान मिलेगा जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसका मतलब इस्लाम से बेहतर, इस्लाम से पवित्र कोई दीन नहीं है। और आगे बढ़ते चलो प्यारे, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को आपको बताता हूँ। जिस नबी को वसीम रिजवी जैसे कुत्तियां और वलीद बिन मुगीरा की औलाद गालियां दे रही है ना, आओ जरा उस नबी की सीरत को हम बयान करते हैं। जब मेरे नबी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए हैं, आप 40 साल की उम्र तक, आपकी उम्र 63 साल की रही है, 40 साल तक इंसानियत के बीज बोए हैं। इंसानियत के बीज बोते बोते आओ मैं नबी का पावर नहीं बताऊंगा, नबी की आपको सीरत बता रहा हूँ। आप सीरत पाक में इस तरह आपकी सीरत बताई जाती है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे ना, आप पर बादल साया कर लिया करते थे, और जो बड़े बड़े काफिर थे आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें अपनी औलादों को दिया करते थे। कहाँ गए वसीम रज़वी जैसे कुत्ते, इन दलीलों को कहाँ रखोगे? उसके बाद यही वसीम रज़वी जालिम यहाँ तक भी कहा है मोहम्मद इतना बड़ा जानी था कि अबू बकर को अपना सहयोग बना के उसके छोटी सी बच्ची के साथ जिना किया है। ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज बोलने वालों के लिए आज अदालत कोई समझौता नहीं कर रही है, आज उनकी अदालत हिमायत कर रही है। अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चे नहीं होते। और मैं ये खुल के कह रहा हूं, चाहे आरएसएस के चड्डीधारी लोग हों, चाहे उनसे संगठन रखने वाले और लोग हों, हम इस शख्स को न कल भी मुसलमान मानते थे और न आज मुसलमान मानते हैं। पहले इसको हम छोटा काफिर शिया मानते थे, आज खुल्लम खुल्ला काफिर मानते हैं और इससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। यही जालिम कह रहा है मोहम्मद इतना बड़ा, इतने मोहम्मद से बड़ा कोई दुनिया में शातिर इंसान नहीं था। उसके बाद आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक सीरत पे आपको बताता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं अगर तुमको किसी को माफ करने में तुम्हारी इज्जत घट जाती हो तो मैदान महशर में मुझ मोहम्मद से ले लेना। ये सीरत को भूल के झूठी और मनगढ़ंत कहानी बयान कर रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामों से रिसालत पर हमला कर रहा है। ऐसे वक्त में जिम्मेदारी है हम नामों से रिसालत के लिए खड़े हों और हमारी एक आवाज ना आज दुनिया को बदल सकती है। मुत्तफिक हो तो बदल दो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक पैगाम और वसीम रज़वी जैसे वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल की औलाद की एक ज़बानी तहरीर आपको बताता हूँ। ये जालिम लिखता है कि मुसलमानों के मदरसों को बंद कर दिया जाए, जहाँ पे कुरान की तालीम दी जा रही हो ना उन तालीमों को बंद कर दिया जाए, कुरान से 26 आयतों को निकाल लिया जाए। जब इनसे पूछो किस लिए, और इसका खुद कहना है इसलिए मुसलमान आतंक का एक घर है, यहाँ से आतंकवाद और दहशतगर्दी फैलती है। मुसलमान तालिबे इल्म जो होते हैं ये जब पढ़ाई के फारिग होने के बाद इनके हाथों में तलवार दे दिया जाता है, इनको तलवार थमा दी जाती है, ये लोगों का खून करते हैं। मैं वसीम रज़वी से भारत के कानून से पहले की बात करना चाहता हूँ। तुमने तो ये कह दिया है मुसलमानों के मदरसों को बंद कर दिया जाए, कुरान की तालीम जो तालीम कुरान दे रहा है ना वो तालीम दहशतगर्दी का तालीम है। मैं पूछना चाहता हूँ 1948 के अंदर जब गांधी परिवार को मारा गया था वो किस कुरान किस मदरसे में तालीम हासिल किए थे और उसको उनको कौन सा पैगाम दिया गया था जो गांधी परिवारों को मारा गया था। और उससे नीचे आ जाओ प्यारे, 1948 की बात कर रहा हूँ और 19 सारे गांधी के परिवारों की बात कर रहा हूँ। जब जितने लोगों ने कोई सोनिया गांधी को बम से उड़ा रहा है, कोई गांधी जी पे तीर, कोई गांधी जी पे गोलियां चला रहा है, ये लोग किस मदरसे में तालीम हासिल किए थे? इन लोगों को कौन सा कुरान अमल करने को सिखाया था? वसीम रज़वी इसका जवाब दें, कयामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं आगे बताता हूं प्यारे, फिर यही बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में कहता है मोहम्मद जो पैगाम लाए वो कोई पैगाम नहीं था, मोहम्मद जिस किरदार तक मोहम्मद का कोई किरदार ही नहीं था। आओ मैं आपको बताता हूं प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की किरदार क्या है। आपकी तो किरदार वो है, अभी 40 साल की उम्र हुई है ना जब आखिरी आपका एक वक्त हुआ है, आप जब सरे फारा पे गए हैं और उससे पहले की बात भी सुन लो। ये जालिम कलमा तो बज़ाहिर पढ़ता था लेकिन अंदर से इसके एक शोले पर दहक रहे थे। ये जालिम ऐसी बात कह रहा है मोहम्मद कोई किरदार वाले नहीं थे, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ है, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किए हैं। मेरे नबी का सारे काफिर तारीफ कर रहे हैं, मेरे नबी के सीरत पर लोग अपने बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे फारा पे जाते हैं। आपने वहां पर फरमाया था अना खातमुन नबिय्यिन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं ना होगा। अब उसके बाद तमाम लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। उसके बाद वहीं पर आपको लोगों ने गालियां भी दी हैं, लोगों ने आप पर पथराव भी किए हैं, आपसे इनकार भी किए हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये जालिम ये भी लिखा है अगर मोहम्मद इतने ही अच्छे थे तो सरे फारा पे उन लोगों ने उनका साथ क्यों छोड़ा था? वो लोग उनके हाथ पर बैयत क्यों नहीं किए थे? वो लोग उनका कलमा क्यों नहीं पढ़े थे? जालिम तूने सीरत इस्लाम का मुताला किया ही नहीं है, तूने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ जब सरे फारा पर मेरे नबी थे ना वहां पर एक जिसको पहला सहाबी बनना था वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। मैं ये बात मानता हूँ, ये बात सच है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दी गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात वहां नहीं मानी गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बाईकाट की गई है। लेकिन उसकी बाईकाट करने की वजह यह थी अल्लाह खुद नहीं चाहता था इनमें से जितने मजमे
لکھنے میں ہے یہ کوئی پہلا بنے، اس لیے پہلا کسی اور کے قسمت میں لکھ جا چکا ہے۔ جب میرے نبی نے یہ پیغام دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے پہلا صحابی ہونا، پہلا خلیفہ ہونا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس لیے وہاں پر کوئی آپ پر بیعت نہ ہو سکا ہے۔ اور مولا صدیق جب واپس آتے ہیں، مولا صدیق کے واپس آنے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی نے کعبے میں خطبہ دیا ہے تو اس کا خطبہ دینے والے کا نام ابو بکر ہے۔ اگر سب سے پہلے کسی نے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا ہے تو اس ہاتھ دینے والے کا نام ابو بکر ہے۔ اگر سب سے پہلے اسلام کے لیے کسی نے قربانی دی ہے تو قربانی دینے والے کا نام ابو بکر ہے۔ میں بس آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں الگ الگ طریقے کے لوگ آئے ہیں۔ آپ اگر 14ویں صدی اٹھائیں گے تو ٹوپی اور جھبا کے لوگ بھی آئے ہیں، اور اگر آپ اس صدی کو اٹھاؤ گے تو یہاں ٹیکے والے لوگ آئے ہیں۔ ہمیں ہر طریقے سے اپنی آپ کو بچانا ہے، ناموس رسالت کو بچانا ہے، ناموس رسالت کی خاطر اپنی آپ کو اور اپنے تن من دھن کی قربانی کو دینا ہے۔ میں آپ کو اپنی تقریر کو یہ پہ ختم کر رہا ہوں۔ مولا اگر میرے کہنے میں اور آپ لوگوں کے سننے میں کوئی غلطی ہو مولا تو حسین اعظم کے صدقے معاف فرما۔